Yesterday we started with Indian Partnership Act 1932. Actually, we did the introduction of the Indian Partnership Act 1932, right? I told you that this act was repealed from Indian Contract 1872. The chapter 11 of Indian Contract 1872 was related to partnership. That section 239 to section 266 of Indian Contract Act were repealed and a new act was prepared and became effective from 1st of October 1932. There are total 74 sections in Indian Partnership Act 1932. पहले वो कौन से सेक्शंस थे? सेक्शन 239 to section 266 of Indian Contract Act 1872. They were contained in the chapter number 11. अब वो कितने sections हो गए? Total 74 sections under Indian Partnership Act 1932. So we will be dealing with those 74 sections, all sections in our syllabus. Out of that 74 sections, section number 69, which relates to the limitations of unregistered firms, because registration of the partnership is not mandatory as per Indian Partnership Act. So if a firm is not registered, what are the disadvantages? What are the limitations? Try to understand. Are given in section 69. That section got effective exactly 1 year after the act got implemented, that is on 1st October 1933. Then section 1 जो हमने कल डिस्कस किया, that talks about the short title of that Indian Partnership Act 1932. Whenever you will be referring to the Bear Act, try to understand whenever they say the act, अगर कोई भी एक्ट, एग्जांपल आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट रेफर कर रहे हो, बेयर एक्ट जो कल मैंने ग्रुप पे शेयर किया है, जहां जहां पे द एक्ट लिखा होगा इट मींस राइट इट इज इंडियन पार्टनरशिप 1932. अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेयर एक्ट ले रहे हो एंड उन्होंने लिखा है द एक्ट, मींस दे आर टॉकिंग अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सो बेयर एक्ट में हमेशा वो रिपीट नहीं करते टर्म, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे रेफर दैट बाय द एक्ट. सो द शॉर्ट टाइटल ऑफ द एक्ट, then the extent, right, the jurisdiction over which it is applicable. Indian Partnership 1932 is applicable to whole of India except state of Jammu and Kashmir. And third, right, the commencement of that, it is applicable with effect from 1st October 1932 except section 69 which got applicable from 1st October 1933. मैंने जैसे पहले ही बोला कि before 1st October 1932 partnerships were governed by Indian Contract Act. उसके पहले 1872 के पहले, try to understand, right, they were governed by English common laws. So contract is a base of the partnership, agreement is a base of the partnership, try to understand. So right, section 3 talks about the application of Indian Contract Act to the firms, to the partnership firms. As Indian Partnership Act is sourced out of Indian Contract Act, or I will say partnership is a relation, partnership is a contract, partnership is because of the agreement between the partners, right? It is a special contract. It is which contract? Special contract, right? वो contract voluntarily है. Partnership is a voluntary. हम किसको force करके partnership में नहीं लेके आ सकते. It is voluntary. Second, it is contractual in the nature. मतलब वो contract होता है, try to understand. The contract to carry on a business and to share the profits out of that business, try to understand. So it is a contractual relationship. It is voluntary relationship. So right, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना. Now I am talking about, right, the nature of the partnership. It is a contractual, it is a voluntary relationship. So it is a special contract. So the main provisions of general contracts, section 1 to section 72, section 1 to section 75 of Indian Contract Act are applicable to even firms if those provisions are not in contradiction
they are not inconsistent with Indian Partnership Act 1932. Contract Act में कुछ मेंशन किया है, and if that is not against, simple common man के language में, it is not against what is mentioned in the or what is given in the Indian Partnership Act, then those provisions are applicable to the firms as well. उसका reason है partnerships are like special contracts. Partnership is a special contract. समझ में आ रहा है? उसका reason है it is a special contract, voluntary in the nature, it is a contractual in the nature. इसलिए main contract के provisions applicable रहेंगे if they are not in contrary to the IPA. If IPA is silent on any aspect of the contract between the partners, Indian Contract Act will be applicable or the provisions of Indian Contract will be applicable. उसमें मैंने कल आपको सेक्शन 11 के बारे में बोला था. सेक्शन 11 of the ICA, Indian Contract Act, gives the competency of the persons who can enter into contract. Competent persons. मैंने बोला था there are 3 competent persons. You will learn that in detail in the Indian Contract. मैंने खाली रेफरेंस उठाया था सेक्शन 11 का. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 11 गिव्स पॉजिटिव, वो पॉजिटिव बात करता है वो सेक्शन. सम सेक्शंस टॉक पॉजिटिव, सम सेक्शंस टॉक नेगेटिव. अगर पॉजिटिव दिया तो हमें उसका नेगेटिव मीनिंग निकालना आना चाहिए. समझ में आ रहा है? नेगेटिव दिया तो उससे पॉजिटिव निकालना आना चाहिए. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं. इंडियन सेक्शन 11 टॉक्स अबाउट द पॉजिटिव दैट हु कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन 11 ऑफ आईसीए, राइट? उसमें लिखा है the 3 persons can enter into contract. 1, a person who is a major, means a person who has completed 18 years of each age. Major का criteria 18 years is given in Majority Act 1875. Try to understand. कहाँ पे तो mention करके रखना, right? वो act कब का है, right? 1875 का है. 1872 में contract act आया था, exactly 3 साल के बाद Majority Act आया है, right? According to that Majority Act, 18 years is a prescribed age of attaining the majority. Any person, any domicile person of India who has attained 18 years or who has completed 18 years of his age will be treated as a major. समझ में आ रहा है? So try to understand one thing. So अगर ये भी पता होगा आपको, you can vote only after you complete your 18 years of age. So you have to be major in order to vote in, right, in elections. बट अगर आपको समझ में आता है आपका मैरिज, राइट, मैरिज के लिए बॉयज के लिए कितना एज है, 21 इयर्स एज है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. दैट इज गवर्न बाय सम सेपरेट एक्ट. सो व्हाट आई मीन, ट्राई टू अंडरस्टैंड. मेजॉरिटी एक्ट 1875 में 18 इयर्स की लिमिट दी है. नाउ, राइट, ऑल द पर्संस हु आर मेजर और मेजर कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. इट सिंपली मींस, इसका नेगेटिव एस्पेक्ट आ गया कि माइनर कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. सेकंड उन्होंने लिखा है ए पर्सन ऑफ साउंड माइंड कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. हु इज अ पर्सन ऑफ ए साउंड माइंड? ट्राई टू अंडरस्टैंड. ए पर्सन हु इज अ रैशनल पर्सन हु कैन टेक, राइट, डिसीजंस, राइट, व्हाट इज गुड फॉर हिम और व्हाट इज बैड फ्रॉम हिम. समझ में आ रहा है? ही कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज, राइट, उसका इंटरेस्ट कहाँ पे लाई करता है. अगर ऐसा पर्सन को हम बोलते हैं साउंड पर्सन. द साउंड पर्सन कैन एंटर, पर्सन विथ ए साउंड माइंड can enter into contract. इसका मतलब है person with unsound mind cannot enter into contract. And third, right, all those persons who are not disqualified to enter into contract to the law subject, right? क्या बोला मैंने? A person who is not disqualified to enter into contracts according to the law to which they are subject to. मतलब वो सब persons जिनको कोई एक्ट, राइट, जिस लॉ को वो प्रिवेल करते हैं. लाइक अगर आप इंडियंस की बात कर रहे हो तो हम इंडिया के एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. अगर कोई लॉ उसको कॉन्ट्रैक्ट करने से, राइट, मना करता है तो देन ही कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. सो उसमें मैंने एग्जांपल दिया था एलियन एनिमी कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. मैंने बोला था इंसॉल्वेंट कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. एग्जांपल दे रहा हूं मैं. दीस पर्संस आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट. एलियन एनिमी का you will learn in detail in Indian contract, but मैं बोलता हूँ, right, when a country is at a war with another country, during that period of time, जब war is going on, try to understand, during that period, that, right, उस country के citizens becomes alien enemy, right? So
हमेशा वो एलियन से रहेंगे, ये मैं आपको बोल रहा था. सो the three persons can enter into contract: major, person with sound mind, and third, who are not disqualified by any right act. Then इसका मतलब तीन persons cannot enter into contract, minor cannot enter into contract, person with unsound mind cannot enter into contract, and right persons who are disqualified from enter into contract. तो उसमें मैंने बोला था minor as per Indian contract cannot enter into contract, right? However, as per Partnership Act, as you must be aware, minor can be admitted to the partnership for his benefits. Try to understand. So यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफिकली प्रोवाइड समथिंग डिफरेंट देन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट. ऐसे केसेस में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्रिवेल करेगा. बट ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, राइट, पर्सन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग राइट इनटू कॉन्ट्रैक्ट, इसके बारे में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कुछ लिखा नहीं है. इट इज साइलेंट ऑन दैट एस्पेक्ट. नाउ can I enter into contract with an unsound person, right? A person with unsound mind. Can I enter into contract with persons who are disqualified from entering into contract? अगर ये मेरा क्वेश्चन मार्क है, I will first refer to Indian Partnership Act, which does not talk about it. So I have to take the reference of the Indian contract, and Indian contract tells these persons are not competent to enter into contract, so I cannot enter into partnership with them, or I cannot admit them as a partner in the existing partnership firm. Try to understand. अब मैं एक और चीज बोलता हूँ. कोई बच्चे मुझे कल डाउट पूछ रहे थे, सर माइनर पार्टनर के बारे में वर्डिंग क्या है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. वर्डिंग ऑफ द लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट. द वर्डिंग इज ए माइनर कैन बी एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर हिज बेनिफिट. कैन बी एडमिटेड टू द पार्टनरशिप बोला है, मतलब पार्टनरशिप ऑलरेडी है, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है, एंड फिर हम माइनर को पार्टनर कर रहे हो. वी कैन नॉट फॉर्म पार्टनरशिप विद ए माइनर. माइनर को लेके नई पार्टनरशिप बना नहीं सकते हम लोग. बट अगर एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है जिसमें सब मेजर है, हम माइनर को ले सकते हैं. क्या बोला, ध्यान देना. एडमिटेड टू द बेनिफिट, एडमिशन कर सकते हैं माइनर का एज ए पार्टनर. हम माइनर के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. माइनर के साथ हम पार्टनरशिप क्रिएट नहीं कर सकते, फॉर्म नहीं कर सकते. हाउएवर एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में हम माइनर को पार्टनर ले सकते हैं फॉर हिज बेनिफिट. एंड एज यू, ये आपको पता भी होगा, आपने ओसी में किया होगा कि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है इन केस ऑफ पार्टनरशिप, राइट. दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द पार्टनरशिप दैट, राइट, आपने ओसी में किया होगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. माइनर्स लायबिलिटी, माइनर पार्टनर की लायबिलिटी इज लिमिटेड टू हिज शेयर इन द प्रॉफिट और हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. उसकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है. ये माइनर पार्टनर में, टाइप्स ऑफ पार्टनर में हम और डिटेल में करेंगे. बट कल मुझे डाउट पूछा था एक ने, तो मैं उसका आंसर दे रहा हूं. माइनर के साथ हम पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकते. हाउएवर एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में हम माइनर को पार्टनर बोल के ले सकते हैं. ठीक है. सो सेक्शन 3 वो बात कर रहा था कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ द राइट आईसीए टू पार्टनरशिप फर्म्स. यस, दे आर एप्लीकेबल. यस, इफ दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द आईपीए. ICA के provisions are applicable to the partnership firms if they are not inconsistent with, right, Indian Partnership Act. Then दूसरी एक और बात, ठीक है, ये कल हमने देखा था. Now I will be starting with section 4. ठीक है. Let me share the screen. Okay. Yes. Now I will be dealing with section 4 of Indian Partnership Act of IPA. This is very important section and आपको पता ही होना चाहिए section number. There is no other option. Section 4 of Indian Partnership Act gives the definition of the partnership. Section 4 of IPA gives definition of the partnership. What do you mean by partnership? Try to understand. Partnership. मुझे पता है आप लोगों को उसका आंसर पता है, बट राइट वो हम अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता है, राइट.
हमें उसको लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। नाउ आई विल डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। इसका मतलब एवरी पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। रिलेशन मतलब आपके रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो आप रखते हो दूसरे लोगों के साथ। मैं रिलेशन मतलब मैं राइट पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स है उनके रिलेशन की बात कर रहा हूं, मैं बिजनेस रिलेशन की बात कर रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, सेकंड, बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स, राइट। ये रिलेशन क्यों है पर्सन के बीच में? अब पर्सन्स कौन आते हैं ये भी क्वेश्चन रहेगा, मैं एक एक चीज लूंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पर्सन्स में कौन कौन आता है? वेदर पार्टनरशिप फर्म इटसेल्फ इज ए पर्सन, कैन राम श्याम सीता नेचुरल पर्सन्स आर पर्सन, कैन ए कंपनी कैन बी क्वालिफाइड एज ए पर्सन, समझ में आ रहा है? तो वो सब इसमें आ जाएगा। सो इट इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स। हम यहाँ पे प्लूरल यूज करें, सिंगुलर नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं पर्सन नहीं लिखा है, आई हैव रिटन पर्सन्स, इसका मतलब देयर मस्ट बी मिनिमम 2 पर्सन। सो रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स, किस लिए रिलेशन है? टू शेयर द प्रॉफिट्स, शेयर द प्रॉफिट्स, शेयर द प्रॉफिट्स। आप बोलोगे सर आपने लॉसेस नहीं लिखा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। शेयरिंग ऑफ द लॉसेस इज नॉट ए कंडीशन ऑफ ए पार्टनरशिप। हम बोलते थे 11 12th में कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर करने होते हैं। पार्टनरशिप में लॉसेस शेयर नहीं होते तो भी चलेगा। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज द शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट। मतलब अगर आपको पता होगा, माइनर डज नॉट शेयर द लॉसेस, माइनर ओनली एंड ओनली शेयर्स प्रॉफिट। तो माइनर किधर शेयर कर रहा है भाई लॉसेस? तो हाउ कैन यू से कि पार्टनरशिप में हर पार्टनर ने लॉसेस शेयर करने चाहिए? आपने 12th में एक सीखा भी होगा कि देयर इज वन टर्म पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। ये सीखा है कभी तो, नाम सुना होगा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, मतलब ही डज नॉट शेयर द लॉसेस। तो what is essential element, right? One of the important element is the sharing of the profits. Sharing of the losses is eventual because losses are negative profits, try to understand. So I mean, right, sharing of the profits is important, sharing of the losses is not important. There can be some partners who may not share the losses, who will share only and only profit, still there is a partnership. धीरे धीरे समझेंगे, राइट, टू शेयर द प्रॉफिट। सो इट इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स, राइट, फॉर व्हाट पर्पस? टू शेयर द प्रॉफिट। बट प्रॉफिट किसके? प्रॉफिट कौन से वाले प्रॉफिट, ये सोचना चाहिए, राइट। प्रॉफिट्स, राइट, फ्रॉम ए बिजनेस, मतलब that relation should be to carry on a business, right? Relation between the persons to share the profits from a business. Number 5, right, carried on by all. That partnership, that business, I mean, can be carried on by all. Everyone can take active part into the partnership, or right, any one of them acting for all, acting for all. Yeah, there will be some representative, right, who will act on behalf of other partners. सब partners active part ले सकते हैं, और right, some of the partners may take active part with the consent of other partners. Try to understand. Like आपके क्लास में मॉनिटर हुआ करता था बचपन में, that monitor used to represent your class. His actions is as good as your actions. Try to understand. On similar basis, there will be active partner who will act on behalf of all the partners. It is not necessary कि everyone should take active part. समझ में आ रहा है? अब इंडिया की मैच है, टॉस करने क्या है, 11 प्लेयर नहीं जाते, द कैप्टन टॉस के लिए जाता है, ही एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द फर्म, ऑल द टीम. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो all partners can act, or there can be one or more partners, not all partners, who will act on behalf of all the partners. So अब मैं ये जो definition है, this definition is given in the para 1
ऑफ सेक्शन 4, इतना याद नहीं रखना है, राइट, वो मुझे पता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, राइट. सो सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट गिव्स द डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप. इट इज अ रिलेशन. तो सबसे पहला फीचर आता है कि इट इज अ रिलेशन. स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप, राइट. अगर कोई बिजनेस पार्टनरशिप है नहीं है तो आपको पहले क्या देखना है, वेदर इट इज अ रिलेशन. इसका मतलब एवरी पार्टनरशिप इज अ रिलेशन. ठीक है, एवरी पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, राइट. एवरी, एक मिनट, इसका तो डाउट है, मैं वो पहले डाउट लेता हूं यहाँ पे. ठीक है, हाँ ओजस प्लीज. सर गलती से हुआ. ओके, नो इश्यूज. सो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि हाँ, मैं बोल रहा था कि पार्टनरशिप्स आर रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट पार्टनरशिप. मैं एक एक चीज आ जाऊंगा, ठीक है. अब ध्यान देना. सो पार्टनरशिप में क्या इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप होनी चाहिए, पर्सन्स होनी चाहिए. वो किस लिए रिलेशनशिप होनी चाहिए, टू शेयर द प्रॉफिट्स, राइट. वो प्रॉफिट किससे होना चाहिए, बिजनेस से होना चाहिए, राइट. वो बिजनेस ऑब्वियसली वैलिड बिजनेस होना चाहिए, राइट. लीगल बिजनेस होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, स्मगलिंग नहीं होनी चाहिए, गैम्बलिंग वगैरह ऐसे इलीगल बिजनेसेस नहीं होने चाहिए. ठीक है. Carried on by all, everyone can take active part into the business, or one of them can take active part on behalf of all other partners. So section 4 para 1 gives you definition of partnership. Now section 4 also gives, right, definition of the partners. What do you mean by partners? The persons who have come together to form the partnership. Individually they are called as partner. A, B and C have come together and they have started a partnership. ऐसे केसेस में A, B, C इंडिविजुअली बोल रहा हूँ, इंडिविजुअली हम बोलते हैं पार्टनर A, पार्टनर B, पार्टनर C, लाइक दैट. सो इंडिविजुअली दे आर कॉल्ड एज पार्टनर्स. समझ में आ रहा है. कलेक्टिवली साथ में ABC को हम क्या बोलते हैं, फर्म. सो इंडिविजुअली द पर्सन्स आर कॉल्ड एज पार्टनर, कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज फर्म. सो हम बोलते हैं ABC is a firm. Try to understand. A is a partner, B is a partner, C is a partner. Collectively वो क्या बन जाते हैं, firm. And third, the firm name. What do you mean by firm name? The title or the name under which they carry on a business of the partnership is called as firm name. Suppose A, B and C have came together, right? And they have started a business to share the profits. All the essential elements of the partnership are present. So individually they are partners, collectively it is a firm, and they have continued the business like मेसर्स ए बी सी एंड कंपनी बोल के उन्होंने क्या किया, पार्टनरशिप को उसका नाम रखा है. तो दैट मेसर्स ए बी सी एंड कंपनी is a name of the firm. So section 4 talks about the meaning of the partnership. Second, it talks about the partners. What do you mean by partners? And third, right, उसके बाद वो बोलता है what do you mean by firm, and then, right, what do you mean by firm name. किसको दिक्कत है इसमें अभी तक, राइट. अब यहाँ पे ध्यान देना, सेक्शन 4 क्या बात करता है, राइट. आई विल टेक यू टू द नोट्स. ठीक है, आपने नोट्स ओपन नहीं किए तो भी चल जाएगा, राइट. यहाँ पे ध्यान देना. Definition of the partnership. Partnership is a relation between the persons, right, who have agreed to share, right. They have agreed, मतलब वो agreement होना चाहिए. Try to understand that agreement होना चाहिए. वो कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो देखेंगे. To share for what? Profits of a business. Losses definition में नहीं है. हम लिखते थे profits and losses. However, law में losses के बारे में बात नहीं की है. Carried on by all or, right, any one of them acting for all. Persons who have entered into partnership with one another are individually called as partners. Individually हम उनको क्या बोलते हैं, partners, and collectively we call them as a firm. And the name under which the business is carried is called as firm name. Now this is very important जो मैं बात कर रहा था. All partnerships are relations. कोई भी partnership firm उठाओ, कोई भी, that partnership firm is in relation between the partners. However, all relations are not partnership. समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूँ. अगर मैं वेन डायग्राम के थ्रू समझाने का ट्राई करता हूँ, सपोज दीज आर द रिलेशंस. रिलेशन कैन बी लाइक HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इज अ रिलेशन विद, राइट. फैमिली के मेंबर साथ में आके बिजनेस कर रहे हैं, HUF, इट इज अ रिलेशन. समझ में आ रहा है. एग्जांपल कम, राइट.
हम एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की हमने, इट इज अ रिलेशन, मेंबर्स साथ में आके बिजनेस कर रहे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ आर इज आल्सो रिलेशन, फादर एंड सन का रिलेशन है, all these are the relation, but does all relation amount to partnership? No, only those relations, right, which are to share the profits from a business carried on by all or one of them, right, उन रिलेशंस को ही हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप बोलेंगे. तो आउटर सर्कल इज अ रिलेशंस, and not all relations are the partnership. Some of the relations who specifically, right, satisfies the condition of the partnerships become, right, partnerships. So उन्होंने क्या लिखा है, all partnerships, inner circle, all partnerships are relations. Every partnership has to be relation. अगर वो रिलेशन नहीं तो पार्टनरशिप है ही नहीं, पहली तो बात. So all partnerships has to be relation, but every relationship does not become partnership. ठीक है? So this is very important. So now मैं एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान देना. ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ में रिलेशन है, बट आर दे पार्टनरशिप? नो. बट अगर वही दोनों एज ए पार्टनर बोल के बिजनेस स्टार्ट करते, ठीक है, दैट रिलेशन विल क्वालिफाई एज ए पार्टनरशिप. सो एवरी रिलेशन पार्टनरशिप होगी नहीं होगी गारंटी नहीं. वही रिलेशंस भी सेटिस्फाई सेक्शन 4 कंडीशन. सेक्शन 4 के कंडीशंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं. रिलेशंस वो पार्टनरशिप है या नहीं है, इज गवर्न बाय सेक्शन 4. वही रिलेशंस जो सेक्शन 4 ऑफ आईपीए की कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, वही रिलेशंस पार्टनरशिप होंगे. एंड देयर इज ऑल्सो अनदर सेक्शन जो मैं कल उस पर बात करूंगा, सेक्शन 6. Section 4 and Section 6 helps you to identify whether that relationship is a partnership or not. समझ में आ रहा है? So all those relations which satisfy the provisions of Section 4 and Section 6 are the partnerships. Otherwise, they are not partnership. Then अब मैं एक एक essential element का डिस्कशन करूंगा. ठीक है, सबसे पहले राइट, इस डेफिनेशन से हमें कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप मिलते हैं. अगर वो रिलेशन पार्टनरशिप है या नहीं है, अगर ये हमें ढूंढना है तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए. सबसे पहले पार्टनरशिप इज एसोसिएशन. पार्टनरशिप इज एसोसिएशन ऑफ और बिटवीन टू और मोर पर्संस. अच्छा, क्या बोला? पार्टनरशिप इज एसोसिएशन of 2 or more persons. Sir, does partnership act gives you minimum number of partners? क्या बोला मैंने? मेरा सिंपल क्वेश्चन है, पार्टनरशिप में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कहां पे मेंशन किया है क्या? टू बी वेरी फ्रैंक, देयर इज नो सेक्शन which specifically gives you minimum number of partners. हमें पता है minimum number of partners are 2, but there is no section, section 1 to 74 कोई भी सेक्शन देखो, कहां पे भी मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स दिया नहीं है. तो आप बोलोगे सर कहां से लिखा है, कहां से पता चलता है कि देयर शुड बी मिनिमम 2 पार्टनर्स, मिनिमम 2 पर्संस टू कम टुगेदर? अरे डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन में क्या वर्ड यूज किया है? पर्संस. मतलब एक बंदा तो नहीं हो सकता, पर्संस. सो सेक्शन 4 इटसेल्फ इनडायरेक्टली गिव्स यू मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स. स्पेसिफिकली एक्ट में लिखा नहीं है मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर 2. वी हैव टू इन्फर, वी हैव टू आइडेंटिफाई from the section 4 की definition जिसमें लिखा है persons. They have used plural form. Try to understand. एक एक word आपका right interpretation change करेगा law में. So मैं क्या बोल रहा हूँ, right, section 4 by using the word persons tells you that there should be at least 2 persons. So मैंने क्या बोला? minimum number of partners. Minimum number of partners are 2. ठीक है, it is not given by specific section of the act, it is inferred from the definition of the partnership which is given in section 4. ये समझ में आ गया सर? What is the maximum number of partners? Maximum number of partners, ये कल मैंने होमवर्क दिया था.
जिन्होंने नोट्स देखे होंगे उनको नोट से पता चला होगा, या जिन्होंने मेरे आई थिंक मैंने पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के जो लेक्चर्स अपलोड किए हैं उस पे मैंने बोला था कि उस पे भी मैंने मेंशन किया था, राइट, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। अच्छा, एक क्वेश्चन है, मैं पहले वो लेता हूँ। यस, सॉरी सॉरी, संयम। अच्छा ठीक है संयम, आई विल टेक योर क्वेश्चन लेटर ऑन प्लीज। ठीक है, मैं ये कंप्लीट करता हूँ पहले। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज नॉट गिवन अंडर पार्टनरशिप एक्ट। पहले तो ये पता होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज नॉट गिवन अंडर पार्टनरशिप एक्ट। सर ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। यस डेफिनेटली, कहां पे भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स पार्टनरशिप एक्ट में लिखा नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज गिवन इन कंपनीज एक्ट सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट। सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 टॉक्स अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। क्या बोला मैंने? सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 टॉक्स अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। ठीक है, आई सिंपली मीन, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्यों सर से कंपनीज में ऐसे क्यों प्रोविजन पार्टनरशिप की दी है। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। कंपनीज ऑल्सो एसोसिएशन, ये भी आपने पढ़ा होगा जब हमने ओसी में अपने डेफिनेशन लिखी होगी। कंपनीज ऑल्सो एसोसिएशन, सो व्हेन टू और मोर पर्संस कम टुगेदर दैट इज एन एसोसिएशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 464 में लिखा है कि एनी एसोसिएशन ऑफ पर्संस टू कैरी ऑन ए बिजनेस has to be company if that association has more than 100 persons। क्या बोला उन्होंने? ऐसी कोई भी एसोसिएशन, जो एसोसिएशन मतलब मोर देन 2 people, राइट, व्हेन एंड दे डू द बिजनेस, एंड ऐसे 100 से ज्यादा लोग साथ में आके बिजनेस करते हैं, ऐसी एसोसिएशन जिसमें 100 से ज्यादा पार्टनर्स रहेंगे, ऐसी पार्टनरशिप जिसमें 100 से ज्यादा पार्टनर रहेंगे, ऐसी पार्टनरशिप नहीं हो सकती, वो कंपनी ही हो सकती है। दे शुड रजिस्टर इट नॉट एज ए पार्टनरशिप, दे शुड रजिस्टर इट एज ए कंपनी। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर हम सब आके क्लास के बच्चे एक पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं, अगर हमारा नंबर 100 से ज्यादा हो जाता है तो हम उसको पार्टनरशिप नहीं बोल सकते, हमें उसको क्या रजिस्टर करना पड़ेगा? कंपनी बोल के रजिस्टर करना पड़ेगा अंडर कंपनीज एक्ट। हमारी पार्टनरशिप नहीं रहेगी वो, दैट विल बिकम इलीगल इफ वी डोंट रजिस्टर एज पार्टनर्स, इफ वी डोंट रजिस्टर एज ए कंपनी। सो अगर 100 से ज्यादा लोग साथ में आके पार्टनरशिप करेंगे तो दैट पार्टनरशिप इज ए इलीगल पार्टनरशिप, दैट एसोसिएशन इज ए इलीगल एसोसिएशन। उसको हम कंपनी, अगर आपको वो करना ही है बिजनेस 100 से ज्यादा लोगों के साथ, तो उसको कंपनी बोल के करो, उसको पार्टनरशिप बोल के नहीं कर सकते। However, right, section 464 has also given right to the central government to reduce that limit of 100, and as per that right, as per that power, right, central government has kept that limit as 50। मतलब सेक्शन 464 में जो 100 लिखा है, we have to read it as 50 now, not 100। इसका ही मतलब क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म कैन बी 50। अगर 50 से ज्यादा पार्टनर्स हो गए, 51 हो गए, 52 हो गए, उससे ज्यादा हो गए, 50 से ज्यादा, तो वो पार्टनरशिप इलीगल एसोसिएशन हो जाएगी, वो पार्टनरशिप इलीगल पार्टनरशिप हो जाएगी। अगर हमें बिजनेस कंटिन्यू करना है, वी शुड रजिस्टर इट एज ए कंपनी एंड नॉट पार्टनरशिप। सो सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 gives us, right, maximum number of partners which is 50। today it is 50। क्या बोला मैंने? 50। आई विल शो यू दैट प्रोविजन। मैं गूगल पे सर्च करता हूं, ध्यान देना। सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे व्हाट दे हैव गिवन। यस, सेक्शन क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा उसको ये करता हूँ, जूम आउट करता हूँ, ध्यान देना। ठीक है, धीरे धीरे लॉ पढ़ना सीखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेक्शन 464
prohibition of association or a partnership, right, of persons exceeding certain number. कोई भी एसोसिएशन और पार्टनरशिप अगर एक नंबर से ज्यादा अगर उसमें पार्टनर्स हो जाते हैं, पर्सन्स हो जाते हैं, दैट इज प्रोहिबिटेड अंडर लॉ, अंडर दिस एक्ट, विच इज दैट एक्ट, कंपनीज एक्ट. ठीक है, क्या लिखा है उन्होंने, ध्यान देना. नो एसोसिएशन or partnership consisting of more than such number of persons as may be prescribed shall be formed for the purpose of carrying on any business that has for its object the acquisition of the gains by association of the partnership or by the individuals member thereof, unless it is registered as a company under this act, that is Companies Act, or is formed under any other law for the time being in force, provided that the number of the persons which may be prescribed under this section shall not exceed 100. मैंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिड्यूस दैट नंबर टू 50. क्या लिखा है, ध्यान देना. उन्होंने लिखा है कि ऐसी कोई भी एसोसिएशन या ऐसी कोई भी कंपनी जिसमें 100 से ज्यादा मेंबर्स रहेंगे, दैट इज प्रोहिबिटेड. ऐसी कोई पार्टनरशिप नहीं हो सकती, ऐसी कोई एसोसिएशन नहीं हो सकती. अगर आपको वो करना ही है तो आपने उसको कंपनी बोल के रजिस्टर करना चाहिए. Then nothing in subsection 1, ये जो ऊपर ब्रैकेट में ये जो लिखा है ना, आई कैन नॉट, यहाँ पे मैं वो ये नहीं कर सकता, मार्क नहीं कर सकता, राइट, दैट इज सबसेक्शन 1. तो सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, नथिंग इन सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई, मतलब जो 100 की लिमिट है दैट विल नॉट अप्लाई टू व्हिच एसोसिएशंस, राइट, HUF carrying on business, because under HUF 100 members can be more than 100, because membership increases by birth, membership decreases by death. समझ में आ रहा है. तो a HUF can have more than 100 numbers, still that HUF is valid. Try to understand. And second, an association or a partnership, if it is formed by the professionals who are governed by special act. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना. अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ. तो अब मैं बोल रहा था पार्टनरशिप का, क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना. All those associations or all those partnerships which has, now it is 50 number, more than 50 numbers is illegal. So वहां से हमें पता चला कि maximum number of partners is 50. हम लिखते थे बैंकिंग बिजनेस के लिए 10, नॉन बैंकिंग के लिए 20. वो बंद हो चुका है सिंस सेक्शन 464 ऑफ 2013 एप्लीकेबल हुआ है. सो वो भूल जाओ. नाउ देयर इज नो बैंकिंग, देयर इज नो बैंकिंग, ऐसे कुछ नहीं है. एनी बिजनेस लिखा है उन्होंने, कोई भी, फिर वो बैंकिंग बिजनेस हो या नॉन बैंकिंग बिजनेस हो, अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो मैक्सिमम नंबर इज 50. आगे से अब हमें कितना रखना है, 50. और उन्होंने बोला दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू HUF. सो HUF में पीपल नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी मोर देन 50, स्टिल इट इज अ वैलिड HUF, कोई दिक्कत नहीं. एंड दूसरा उन्होंने बोला है कि ऑल दोस पार्टनरशिप्स व्हिच आर फॉर्म्ड, राइट, all those partnership which are having, right, partnership formed by professionals governed by special act. देखो क्या लिखा है, ये वाला पढ़ो, सेक बी वाला पढ़ो यहाँ पे. an association B 2B subsection 2, right, B पढ़ना है उसमें. an association or partnership if it is formed by professionals who are governed by act, उसके लिए वो सबसेक्शन 1 की प्रोविजन अप्लाई नहीं की जाती. मतलब अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना, मैं उसको सिंपल मैन के लैंग्वेज में समझाता हूँ. मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज 50 फॉर अस. भूल जाओ बैंकिंग नॉन बैंकिंग, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज 50. However, this limit, maximum limit, is not applicable for partnerships formed by professionals governed by special act. मतलब एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल में CA दे सकता हूँ. CAs are the professionals governed by special act under parliament. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का अलग एक्ट है. CS कंपनी सेक्रेटरीज आर गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट. CWAs, राइट, आर गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट. अगर ये प्रोफेशनल्स साथ में आके पार्टनरशिप करते हैं तो उनके लिए 50 की लिमिट नहीं है, उनके लिए लिमिट ही नहीं है, अपर लिमिट ही नहीं है. मिनिमम लिमिट 2 है.
उनके लिए मैक्सिमम लिमिट ही नहीं. एग्जांपल, पुणे में जितने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं एंड दे केम टुगेदर एंड दे फॉर्म ए पार्टनरशिप, number is obviously more than 50. Is that partnership valid? Yes, it is valid, because right, subsection 2 of right section 464 of the Companies Act says that, क्या बोलता है वो, कि all those partnership which are formed by the professionals governed by act, underline word act, all professionals governed by act can form partnership with more than 50 persons. समझ में आ रहा है? So whenever someone asks you, right, what is the maximum number of partners, पहले तो ये याद रखना कि it is not given by Indian Partnership Act, it is given by section 464 of the Companies Act 2013. According to that act, 50 persons can come together and can form partnership, not more than 50. 50 से ज्यादा है तो that has to be company. अगर वो कंपनी नहीं तो आपकी पार्टनरशिप इलीगल है. तो ऐसे केसेस में किसी को तो निकालो. अगर आपको पार्टनरशिप ही रखनी है तो किसी पार्टनर को निकालो, उसको एक्सपेल करो, उसको रिटायर होने को बोलो, जो भी आपको ठीक लगता है वो करो. ऑब्वियसली दैट हैज टू बी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, सब रेडी होने चाहिए उसके लिए. नहीं तो आपको उसको कंपनी में कन्वर्ट करना होगा इफ यू हैव टू डू द बिजनेस. सिंपल सॉल्यूशन, उसको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, राइट. हाउएवर, राइट, that 50 limit is not applicable to the professionals, that partnership formed by professionals governed by special act. समझ में आ रहा है? टिकटॉक, सर मैं टिकटॉक बनाता हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ, टिकटॉक प्रो, सर मैं कर सकता हूँ क्या 50 टिकटॉक को लेके? टिकटॉक क्वींस एंड टिकटॉक किंग्स सब साथ में आके पार्टनरशिप करते हैं, वो उनके एंगल से प्रोफेशनल्स रहेंगे, नॉट अंडर एक्ट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. वो साथ में आके पार्टनरशिप उनके लिए 50 रहेगी अगर वो करते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, उससे भी अच्छी काम है हमारे लिए. सो मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि ओनली दोज प्रोफेशनल्स विच आर गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, राइट, उनके लिए लिमिट नहीं, अदरवाइज कोई भी बंदा उठाओ, राइट, उनके लिए, राइट, 50 की लिमिट है. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना. सो एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन. सो पार्टनरशिप इज ए रिलेशन, मैंने बोला पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन. इसका मतलब सर हर एसोसिएशन पार्टनरशिप होती है क्या? दिस इज वन क्वेश्चन. हर एसोसिएशन पार्टनरशिप है क्या? एक तो चीज है, एवरी पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन. Does it mean every association is a partnership? No. Try to understand. So मैं अगर वेन डायग्राम में समझाता हूं, suppose all these are the association. Example, हमारा मंडल है, गणपति मंडल. It is also association of the persons. आप मेरे गांव में आओ, उधर जाओगे तो आपको बस स्टैंड पे हमारा मंडल है, मुझे भी नहीं पता उसका नाम क्या है, टू बी वेरी फ्रैंक. एक मंडल बना है, उसमें मेरा नाम है, हर घर में से एक का नाम दिया है, तो मेरा नाम दिया है उन्होंने, तो वो भी एसोसिएशन है. इज इट ए पार्टनरशिप? नो. हाउएवर, राइट, उसका सबसेट अगर आप देखते हो, दैट कैन बी पार्टनरशिप. आई मीन ओनली दोज एसोसिएशन, राइट, ओनली दोज एसोसिएशंस which satisfies provisions of section 4 and section 6 of the Indian Partnership Act can be partnership. So आगे से याद रखना, every partnership is a relation, but every relation is not partnership. Every partnership is an association, however every association is not a partnership. HUF is an association, company is also association, trust is also association, but they are not partnership. पार्टनरशिप के लिए सेक्शन 4 कंप्लाई होना चाहिए, सेक्शन 6 कंप्लाई होना चाहिए, तो ही वो एसोसिएशन पार्टनरशिप होगी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. समझ में आ रहा है? सो एसोसिएशन, डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, बार काउंसिल अगर पता होगा आपको, लॉयर्स का, वो भी एसोसिएशन है, बट आर दे पार्टनरशिप? नो. राइट, ओनली दोज एसोसिएशंस व्हिच satisfies provisions of section, right, which satisfies the section 4 and section 6 of the Indian Partnership Act will be partnership, otherwise that association cannot be partnership. ये क्वेश्चंस ट्रू और फॉल्स में आपको एक्सप्लेन करने को आते हैं, तो आपको लिखना होगा, राइट. और मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के डिस्कशन कर रहा हूँ. सो एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्संस की मैंने बात की. अच्छा, मैंने बोला मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज 50, प्रोवाइडेड प्रोफेशनल्स गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, वो एक्सेप्शन है, राइट, उनके लिए देयर इज नो अपर लिमिट. फिर मैंने बोला एवरी पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन, बट एवरी एसोसिएशन इज नॉट पार्टनरशिप. सर आपने आगे लिखा है
पर्सन्स, कौन पर्सन्स है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है. Natural person, artificial person. Try to understand. Persons means who are persons in the eyes of law. Law किनको person बोलता है? Only those persons in the eyes of law will form the partnership. They can be a partner. Example. Natural persons, Ram, Sham can form the partnership, yes, because they are natural persons, right? And they are persons in the eyes of law, they can form the partnership. कोई दिक्कत नहीं. So natural persons can form the partnership. Sir, राम श्याम एंड एक और पार्टनरशिप है. एग्जांपल में क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. राइट, एक पार्टनरशिप है ए बी एंड सी. ये पार्टनरशिप है. ए बी से एक ऑलरेडी पार्टनरशिप है. राम एंड श्याम, ये दो नेचुरल पर्सन, natural person 1, natural person 2, and this is third person. It is artificial person, right? Natural person नहीं है. ABC firm बोल रहा हूं मैं, ABC persons नहीं बात कर रहा, मैं उनकी firm की बात कर रहा हूं. Can they form the partnership is my question. Try to understand. Partnership firm is not a legal person in the eyes of law. Law partnership को उनके पार्टनर से अलग नहीं समझता. क्या बोला, ध्यान देना. पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप इज वन एंड द सेम, एंड देयरफॉर पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. कंपनी में शेयर होल्डर्स एंड द कंपनी आर नॉट सेम. कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल स्टेटस इन द आईज ऑफ लॉ. इसलिए किसी मेंबर की डेथ होती है तो कंपनी डिसॉल्व, लिक्विडेट नहीं होती. अगर कंपनी इंसॉल्वेंट होती है तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज अटैच नहीं होती, बिकॉज इन द आईज ऑफ लॉ द कंपनी एंड द शेयर होल्डर्स आर डिफरेंट. हाउएवर इन द आईज ऑफ लॉ दैट पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स आर नॉट सेपरेट, they are same. So partnership has no legal status. So partnership is not a person in the eyes of law, and therefore a partnership cannot become partner in another firm. समझ में आ रहा है? पार्टनरशिप, दो पार्टनरशिप साथ में आके थर्ड पार्टनरशिप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, बिकॉज पार्टनरशिप एज सच, फर्म एज सच हैज नो लीगल स्टेटस, एंड देयरफॉर टू पार्टनरशिप्स कैन नॉट come together and can form a third partnership. Sir, but partners कर सकते हैं क्या पार्टनरशिप? एग्जाम्पल, ABC एक पार्टनरशिप है एंड राम एंड श्याम की एक पार्टनरशिप है. ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. एंड नाउ ABC इंडिविजुअली बात कर रहा हूं, पार्टनर्स इंडिविजुअली, एंड राम एंड श्याम वांट्स टू फॉर्म अनदर पार्टनरशिप. दे कैन डू इट बिकॉज they are separate person. मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, मेरा वर्डिंग क्या है. पार्टनरशिप फर्म इज not a legal person in the eyes of law, therefore partnership firm cannot be a partner in a firm. समझ में आ रहा है? However, partners of two firms can form partnership. Two firms cannot form partnership, however their partners can form the partnership. Sir, what about company and LLP, limited liability partnership? Company, both company and limited liability partnership are separate person, legal persons in the eyes of law. मतलब, right, they are persons. So Ram and Sham wants to enter into partnership with Reliance Industries Limited. Reliance Industries Limited is a company. Can they form a partnership? Yes. उसमें 3 पार्टनर्स रहेंगे, राम, श्याम एंड कंपनी. कंपनी के शेयर होल्डर्स नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज शेयर होल्डर्स अलग है. कंपनी के डायरेक्टर्स नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, शेयर होल्डर्स नहीं. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो इसमें 3 पार्टनर रहेंगे, राम, श्याम एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. से 3 पार्टनर हो सकते हैं. व्हाई? बिकॉज जो पर्सन्स लिखा है मैंने, that must be a person in the eyes of law. So two partnership cannot form a third partnership, however the partners of two partnership can form a different partnership. Obviously, right, वो पार्टनरशिप ने उनको अलाउ करना चाहिए, बिकॉज इट इज एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स. कोई दिक्कत नहीं. उसके बाद मैंने बोला, कैन ए
company be a partner? Can a LLP be a partner? Yes, because it is a separate entity in the eyes of law. So अब मैं वो यहाँ पे पढ़ता हूँ, ध्यान देना, right? Association of two or more persons, क्या लिखा है? Very important. There should be at least two competent persons to form the partnership. And competent persons के लिए मैंने कल आपको रेफर किया था section 11 of ICA, Indian Contract. ठीक है? Then all partnership are necessarily associations, but every association is not partnership. The partnership is silent as to the maximum number of partners, but section 464 of the Companies Act 2013 gives it, right, as a 50. Exception है, this restriction will not apply to association or a partnership constituted by the professionals governed by special act like CA, CS, etc. If the number of partners exceed this limit, 50 से ज्यादा होती है, the partnership becomes which association? Illegal association. And उस केस में law will ask you to, court will ask you to compulsory dissolve your firm. ठीक है? It ceases, एक और चीज है, सर राम एंड श्याम पार्टनर है, राम की डेथ हो गई, तो क्या हो गया? दो पार्टनर है ना, दो ही पार्टनर है, राम की डेथ हो गई, तो will it be partnership? No, because the partnership will reduce to like less than the statutory limit. दो तो minimum होने चाहिए. So in that case, the firm automatically gets dissolved. Try to understand. It ceases to be a partnership if the number gets reduced to one by any reason. Reason can be anything. ठीक है, अगर एक ही पार्टनर बचता है, in that case that cannot be a partnership. Example, 5 पार्टनर थे, वो जा रहे थे घूमने, कहाँ पे? एक्सीडेंट हो गया, 4 मर गए ऑन द स्पॉट, अब एक ही बाकी है, वो पार्टनरशिप रहेगी नहीं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो इट कैन नॉट बी पार्टनरशिप विथ वन पर्सन. समझ में आ रहा है? ओनली पर्सन्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ कैन एंटर इनटू एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनरशिप. Recognized by law, who are persons in the eyes of the law. So the term persons, as used in section 4, does not include firm. Firm is not a person in the eyes of law. This is because a firm is not a separate legal entity. As such, two firms, right, cannot enter into partnership. Though all the partners of the two firms may form the partnership, but two firms as such cannot form the partnership. Joint stock company, that is company, LLP, can enter into partnership provided, right, they have been authorized by their constitution, they have been authorized by their memorandum, उनको authority दी है कि they can enter into partnership. Try to understand. So this was all about what you are, right, first element of the partnership. What is that? Association of two or more persons. Minimum 2 बंदे होने चाहिए, maximum 50 हो सकते हैं. Exception है, right, exception क्या है? Professionals governed by special act. उसके बाद मैंने बोला कि अगर partnership, right, में कौन पार्टनर हो सकते हैं? Only those persons who have legal status in the eyes of law. मतलब partnership firm as such has not legal status, right? It is same as partners. So two partnerships cannot enter into a new partnership, or partnership cannot be a partner of another partnership. Partnership firm cannot be a partner. However, partners can become a partner in another firm. Persons, individual partners can become a partner. ठीक है, ये सब हमने देखा. Company, LLP, as they have a separate legal entity, they can be a partner. So, second is agreement. Try to understand. Second is agreement. Second element, agreement होना चाहिए. This is very important. Second element of the partnership is an agreement. What do you mean by agreement होना चाहिए? They must agree to share the profits from a business. Agree. पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू होती है. पार्टनरशिप, राइट, स्टेटस के थ्रू नहीं होती है. लाइक हमने एचयूएफ में देखा, एचयूएफ में मेंबरशिप कैसे होती है? बाय बर्थ, बाय योर स्टेटस. अगर आप उस राइट उस फैमिली में बर्थ लेते हो, यू बाय डिफॉल्ट बिकम, राइट, मेंबर. एक बहुत लॉयल बंदा है आपके फैमिली में, ही इज नॉट बिलोंग्स टू योर फैमिली, बट वो बहुत लॉयल है, दिन रात आपके लिए काम करता है. वो कितना भी लॉयल हो, कैन ही बिकम ए मेंबर ऑफ योर एचयूएफ? नो. आप उसको लेना भी चाहोगे तो भी नहीं होगा, राइट. पार्टनरशिप
इज नॉट आउट ऑफ स्टेटस. स्टेटस से पार्टनरशिप नहीं बनती. एग्जांपल, ए एंड बी आर द पार्टनर. उनके लड़के या उनके लड़कियां कैन नॉट बिकम पार्टनर बाय बर्थ. इट हैज टू बी आउट ऑफ एग्रीमेंट. पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू होती है. बाय बर्थ, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय इनहेरिटेंस नहीं होती है पार्टनरशिप. ट्राई टू अंडरस्टैंड. पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एचयूएफ के लिए स्टेटस के थ्रू, बाय इनहेरिटेंस. एक जॉइंट प्रॉपर्टी है. एग्जांपल, एक फादर है, उनकी जॉइंट प्रॉपर्टी है और बाद में उनके दो बच्चों को प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में आ जाती है. उनको दे इनहेरिट द प्रॉपर्टी. दैट इज बाय इनहेरिटेंस. बाय देयर बर्थ वो उसके ओनर है. उसके लिए कोई एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी. दैट कैन नॉट बी पार्टनरशिप. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर उस प्रॉपर्टी से रेंट आता है एंड दे शेयर द रेंट, दैट sharing of the rent, that sharing of the returns out of that property does not make them as a partner. अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट, जॉइंट प्रॉपर्टी है एंड उस जॉइंट प्रॉपर्टी से जो रेंट आ रहा है दो बंदे शेयर कर रहे हैं, राइट, वो जॉइंट प्रॉपर्टी क्यों है? बिकॉज दे हैव गॉट थ्रू देयर स्टेटस, दे हैव गॉट थ्रू इनहेरिटेंस. इट इज नॉट आउट ऑफ एग्रीमेंट. समझ में आ रहा है? सो दैट शेयरिंग ऑफ द रेंट डज नॉट मेक दोस टू पर्संस एज ए पार्टनर. खाली प्रॉफिट शेयर कर रहे, उसको पार्टनर नहीं बनता. ट्राई टू अंडरस्टैंड. लाइक एचयूएफ में सब मेंबर्स प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं. सब प्रॉफिट तो शेयर कर रहे हैं, तो ये पार्टनर होने चाहिए. अरे, इज देयर एनी एग्रीमेंट बिटवीन देम? नो. हाउ कैन दे बी पार्टनर? पार्टनर होने के लिए एग्रीमेंट बहुत जरूरी है. दे बिकम मेंबर, राइट, बाय देयर बर्थ, बाय देयर स्टेटस. Partnership cannot be by birth, cannot be by status, cannot be by operation of law or inheritance. This is very important. So partnership में agreement is very basic. अच्छा सर, तो ये समझ में आ गया कि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना चाहिए. सो एग्रीमेंट सर राइटिंग में होना चाहिए या ओरल चलेगा? कैन बी बोथ. एग्रीमेंट कैन बी ओरल और कैन बी इन राइटिंग, दोनों चलेगा. ठीक है सर, मतलब एग्रीमेंट एक्सप्रेस होना चाहिए. एक ऑप्शन है कि एक्सप्रेस होना चाहिए. एग्रीमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड. दैट आई मीन दैट कैन बी इन राइटिंग, which is always advisable to avoid the future disputes, or it can be oral, or agreement can be implied from the actions of the partners, the dealings of the partners, the relation of the partners. Implied, right? Implied from their actions. Implied मैंने एग्जांपल दिया था. एक लड़का और एक लड़की घूम रहे या हमेशा साथ में रहते हैं, तो हम डिस्कस करते इन लोगों में कुछ तो चालू है. क्यों चालू है? अरे, इट इज इम्प्लाइड फ्रॉम देयर एक्शंस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई सिंपली मीन कि हमें ऐसे लगता है, उनके राइट हो भी नहीं सकता. ठीक है, इम्प्लाइड फ्रॉम देयर एक्शंस. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एग्रीमेंट, जो भी उनका एग्रीमेंट है, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड और दैट कैन बी इम्प्लाइड. एग्रीमेंट रजिस्टर होना मैंडेटरी नहीं है एक्सेप्ट इन महाराष्ट्र. ठीक है, सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड और इट कैन बी इम्प्लाइड, बट एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है. अगर कोई रिलेशनशिप में एग्रीमेंट ही नहीं है, राइट, दैट कैन नॉट बी अ पार्टनरशिप. बहुत सिंपल चीज है. सो एग्रीमेंट इज वेरी बेसिक थिंग, राइट, बिकॉज एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट को लीड करता है. कॉन्ट्रैक्ट का सबसे पहला एलिमेंट तो एग्रीमेंट है, राइट. दैट कैन बी एक्सप्रेस और दैट कैन बी इम्प्लाइड. अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ, राइट, क्या लिखा है उन्होंने, ध्यान देना. राइट, व्हाट इज एग्रीमेंट? द पार्टनरशिप मस्ट बी रिजल्ट ऑफ ए एग्रीमेंट बिटवीन द टू और मोर पर्सन. पार्टनरशिप मस्ट बी रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट. ठीक है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट की वजह से होनी चाहिए. आगे, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू, राइट, बाय ऑल द पर्सन्स कंसर्न. जितने भी पार्टनर्स है उनमें सब में वो एग्रीमेंट होना चाहिए. The element, these elements relates to voluntary contractual nature of the partnership. और एग्रीमेंट वॉलंटरी होना चाहिए. हम किसी को फोर्सफुली एग्रीमेंट में नहीं लेके आ सकते. समझ में आ रहा है? फोर्सफुली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. दैट कैन नॉट बी ए कॉन्ट्रैक्ट. वॉलंटरी होना चाहिए. दैट एग्रीमेंट शुड बी कॉन्ट्रैक्चुअल होना चाहिए. एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए उस एग्रीमेंट में. ठीक है. Thus, nature of the partnership is a voluntary and contractual. ये मैंने पहले भी बोला था. It arises from a contract and not from the status. So मैंने सेक्शन 4 के साथ में सेक्शन 5 की बात कर रहा हूँ. Partnership is a
आउट रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट एंड नॉट ए रिजल्ट ऑफ स्टेटस. मैं आपको बेयर एक्ट में सेक्शन 5 दिखाता हूँ. राइट, सेक्शन 5 क्या लिखा है? पार्टनरशिप. सेक्शन 5 को देखो. पार्टनरशिप नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस. By birth, you cannot become a partner in a existing partnership. If you have to be a partner, right, you have to enter into agreement. Other partners must accept you as a partner. A and B पार्टनर है, उनके बच्चे डायरेक्टली पार्टनर नहीं बनते बर्थ से. अगर उनको पार्टनर्स करना है तो A and B both should agree. A को उसके बेटे को पार्टनर करना है, B के कंसल्ट के सिवा वो पार्टनर नहीं कर सकता. By birth you won't get right. The relation of the partnership arises from contract and not from the status. And in particular, right, इसलिए उन्होंने एग्जांपल दिया है, the members of HUF carrying on a right family business as such. So HUF ये right, HUF is also association to share the profits, but वो partnership नहीं है because the relation is not because of agreement. It is by birth, by status. इसलिए HUF partnership नहीं है. And दूसरा एग्जांपल है Burmese Buddhist husband and wife carrying on a business. ये दो एग्जांपल आपको पता ही होने चाहिए. There is no right other way. कौन से दो? एक HUF is not partnership because HUF is because of status and not because of agreement. और दूसरा एग्जांपल क्या है? एक HUF बोला, right, the members of HUF right are not because of agreement but because of status and therefore they are not partner. That HUF is not a partnership. And दूसरा क्या एग्जांपल है? Burmese Buddhist husband and wife carrying on a business. ये बुद्धिस्ट रिलीजन का एक टाइप है. Burmese Buddhist husband and wife अगर वो बिजनेस कर रहे हैं, that business is because of their like status. They are husband and wife and वो बिजनेस कर रहे हैं. जैसे हमारे में HUF होती है तो उनके केस में Burmese Buddhist फैमिली वाले भी बिजनेस करते हैं. That husband and wife उनमें रिलेशनशिप है. They are doing a business. They are carrying on business. They are sharing the profit. But that business, अगर एग्जांपल एक Burmese Buddhist मेल है, वो बिजनेस कर रहा है एंड बाद में उसकी शादी हो जाती है, तो वाइफ विल बिकम लाइक मेंबर इन दैट बिजनेस. वो एग्रीमेंट की वजह से नहीं हुई है. दैट इज बिकॉज ऑफ हर स्टेटस एज हर वाइफ, एज हिज वाइफ. सॉरी, समझ में आ रहा है? सो that is because of her status, not because of agreement. वो agreement नहीं कर रहे. समझ में आ रहा है? So HUF and Burmese Buddhist husband and wife do not qualify as a partner. Members of HUF are not partner and Burmese Buddhist husband and wife are not partner because their relationship is not because of agreement. Their relationship is because of status, operation of the law, right, or inheritance, right? They do not become partner. So section 5 talks about the importance of the agreement. Therefore HUF अलग and partnership अलग है. Burmese Buddhist husband and wife का business does not qualify as a partnership business because they do not enter into partnership. They do not enter into agreement actually. ठीक है? Then हाँ, आगे किधर गया वो? हाँ, it is partnership is a result of a contract and not result of a status. Section 5 वो बोल रहा था. An agreement between the partners is a basis of the contract. That agreement can be express आपने express किया है, maybe in written or in oral format or implied. Implied means right, we inferred from their dealings, their relationships. Implied agreement may be inferred from the course of dealings or the conduct of the party. हमें दिखता है they are doing the business, they are sharing the profits, they are mutual agent of each other, mutual agency उनमें. इन सब चीजों से हमें दिख रहा है बैंक ऑपरेशन, बैंक जो अकाउंट है सब लोग ऑपरेट कर रहे हैं. इन सब चीजों से क्या दिखता है? they are partners and it is not HUF, right? वो स्टेटस की वजह से एक दूसरे के मेंबर्स नहीं है. they have entered into agreement. ये सब चीजें भले उन्होंने लिखा नहीं है, ना ही उन्होंने एक्सप्रेस किया है कहाँ पे, बट ये चीज क्या दिखाती है आपको उनका? वो ये चीज दिखाती है कि दे आर पार्टनर्स. सो इंफर्ड फ्रॉम देयर एक्शंस, अगर हमें लगता है कि वो पार्टनर्स है, उसकी बात कर रहे हैं. सो एग्रीमेंट कैन बी एक्सप्रेस और एग्रीमेंट कैन बी राइट implied, बट वो एग्रीमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेक दोज पीपल एज ए पार्टनर. दोज
to make those members as a partner, to make that business as a partnership. The agreement may be for a fixed period. जो भी बिजनेस करने का उनका एग्रीमेंट है, implied और express as the case may be, वो एक फिक्स पीरियड के लिए होना चाहिए. Like for the 5 years down the line, 10 years down the line, example. Or, right, it can be for a fixed period or it can be for a execution of particular adventure or a task. वो एग्रीमेंट कुछ एक पर्टिकुलर काम करने के लिए. एक्चुअली these are the type, ये जो अभी मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, these are the types of the partnership. वो वहां पे डिटेल में आ जाएगा. तो हमने बोला कि एग्रीमेंट इज अ बेस ऑफ ए पार्टनरशिप. दैट एग्रीमेंट कैन बी फॉर अ फिक्स पीरियड, 5 years down the line, 10 years down the line, ठीक है. और इट कैन बी टू कैरी आउट ए पर्टिकुलर एक्टिविटी. लाइक हमें एक ब्रिज करना है, ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है, एंड उसके लिए 4 लोग साथ में आ गए, बड़े 4 लोग साथ में आ गए, उन्होंने राइट पार्टनरशिप के अंडर वो बिजनेस कर रहे हैं. वो जब ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा, जब वो हैंड ओवर करेंगे, राइट, तो पार्टनरशिप बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. सो इट कैन बी फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, समझ में आ रहा है, और इट कैन बी फॉर ए फिक्स एडवेंचर, फिक्स पर्टिकुलर टास्क, समझ में आ रहा है. और may give option to the partners to withdraw from the partnership at any point of time. That is a partnership at will. Actually ये जो है, this is the types of the partnership. Types of partnership जो हमारे चैप्टर का लास्ट सेक्शन है, इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है. अगर आप यहाँ पे देखोगे नीचे, उसमें टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप दिए सबसे एंड में, अगर आप देखोगे, राइट, ये वो वाला है, ठीक है. तो मैं अभी वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट मैं खाली ये चीज बोल रहा हूँ आप लोगों को कि दैट एग्रीमेंट कैन बी फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, फॉर ए पर्टिकुलर एक्टिविटी, और इट कैन बी नॉट फॉर रेट, जब तक चलेगा तब तक चलेगा, ऐसे भी हो सकता है, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, ऐसे, ठीक है. आगे नेक्स्ट, पार्टनरशिप इज दस क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट. इट डज नॉट अराइज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एज इन केस ऑफ कोनर्स, or from the status as in case of joint Hindu family, or from the inheritance. ठीक है. Partnership agreement, like any other contract, must have all essential elements of the valid contract. Contract, Indian contract में आप सीखोगे, there are many essential elements to be a contract, right? वो सब elements हमारे पार्टनरशिप एग्रीमेंट में होने चाहिए. इग्नोर दैट पॉइंट, उसका इतना यहाँ पे रिलेवेंस नहीं है कुछ, राइट. सो मैंने क्या बोला, पहले तो आज मैंने 2 एलिमेंट्स डिस्कस किए पार्टनरशिप के. 2 एलिमेंट्स मैंने पहले डेफिनेशन डिस्कस की, फिर मैंने 2 एलिमेंट्स, आई विल टेक द क्वेश्चंस, एक सेकंड, ठीक है. सो राइट, उसमें मैंने बोला कि इट हैज टू बी एसोसिएशन बिटवीन 2 पर्संस. एसोसिएशन, एवरी एसोसिएशन इज नॉट पार्टनरशिप, बट एवरी पार्टनरशिप इज एसोसिएशन. फिर मैंने बोला मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर. फिर मैंने बोला पर्संस, कौन पर्संस होते हैं, ठीक है. उसके बाद एग्रीमेंट. विदाउट एग्रीमेंट देयर कैन नॉट बी पार्टनरशिप. That agreement has to be, right, maybe express form or maybe implied form. समझ में? Express मतलब written or oral. Implied means we will infer it from their actions. Then generally it is always advisable to have a written agreement. Then partnership is result of contract and not result of status. यहाँ तक मैंने आज डिस्कस किया है. I will take one by one, एक एक क्वेश्चंस मैं ले लूंगा and I will address all the questions. ओके सबसे पहले अन्वेष, राइट, यस सर. यहाँ पर लिखा है पार्टनरशिप इज दस क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, इट डज नॉट अराइज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. यस, द ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या है? एग्जांपल, राइट, एक बंदा है, सोल प्रोप्राइटर है, ओके, ठीक है, उसका बिजनेस है एंड उसकी डेथ होती है. दैट बिजनेस इनहेरिटेड बाय होम? हिज सन. डू यू एग्री विथ मी और नो? यस. नाउ उसके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को इनहेरिटेड वो बिजनेस मिल गया. आर यू गेट? तो हिंदू लॉ क्या बोलता है, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी किसको जाएगी? बच्चों को जाएगी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो नाउ दे हैव बिकम लाइक, they have become members of that business because of operation of law, or because of their status being a son, or because of, right, that inheritance. Inheritance में वैसे होता है ना. Are you getting my point? इसलिए ठीक है, तो वो तू बोल सकता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है. ओके. पार्टनरशिप ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से नहीं, खाली किसकी वजह से बनती है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट की वजह से बनती है, ठीक है. अच्छा, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, एक सेकंड.
यस निष्ठा मैम, आपका क्वेश्चन। सर बैंक भी जा सकता है ना पार्टनरशिप में एज इट इज आर्टिफिशियल पर्सन? नहीं, मुझे नहीं समझा, क्या बैंक क्या तूने क्या बैंक बोला? इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, अच्छा, यस यस, तो वो पार्टनरशिप में जा सकता है बैंक ना? इज अ कंपनी मैम, बैंक हैज टू बी कंपनी। अगर आपको बैंक स्टार्ट करनी है, इट हैज टू बी कंपनी और इट हैज टू बी कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड लीगल स्टेटस, इट हैज अ लीगल एंटिटी। तो बैंक पार्टनरशिप में दूसरे किसी के साथ काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थैंक यू सर। Yes. आगे उसके बाद संयम, यस तेरा क्वेश्चन, आई विल टेक योर क्वेश्चन। संयम, हेलो हाँ बोल। सर, इज देयर एनी कोरिलेशन बिटवीन एग्रीमेंट एंड रजिस्ट्रेशन? क्या क्या क्या, आई डिडंट गेट यू, क्या एग्रीमेंट एंड रजिस्ट्रेशन के बीच में कोई डिफरेंस इन द सेंस यस क्या हो डेफिनेटली। सकता है? Agreement if registered becomes deed. Agreement if registered becomes Okay. deed. Otherwise it is just an agreement. उसको अगर तू रजिस्टर ऑफ फर्म्स में रजिस्टर करता है उसको डीड बोला जाता है, अदरवाइज इट इज जस्ट एन एग्रीमेंट। देख मैंने तुझे लिख के दिया, लाइक एग्जांपल मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज रेट तूने मेरे पे ड्रॉ किया और मैंने एक्सेप्ट किया। इज इट ए बिल? नो, इट हैज टू बी स्टैम्प्ड अंडर स्टैम्प एक्ट। उसका रजिस्ट्रेशन Right. बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज दैट हैज नो वैल्यू। तो रजिस्ट्रेशन मेक्स इट मोर, क्या बोलेंगे, लीगल डॉक्यूमेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है? इसलिए So, sir, पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन करना इज ऑलवेज गुड। ओके ओके, बट महाराष्ट्र में क्या कंपलसरी? रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी और जस्ट एग्रीमेंट इज कंपलसरी? एक तो पहली बात, किधर भी जाओ इंडिया में अगर पार्टनरशिप है तो एग्रीमेंट तो मैंडेटरी है, विदाउट एग्रीमेंट कैन नॉट बी पार्टनरशिप। अब वो एग्रीमेंट रजिस्टर करना है नहीं करना है वो ऑप्शनल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Also in Maharashtra, right? It's Yes. optional to Yes. register a partnership form. एग्रीमेंट, यस। देखो पहली तो बात ऐसे नॉट नेसेसरीली कि यही तो चैलेंज है। हम सेक्शन 6 जब स्टडी करेंगे ना तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो रिलेशन है, जो एसोसिएशन है, मेरा क्वेश्चन है वो पार्टनरशिप है या नहीं है। तो मैं सबसे पहले बोलूंगा उसमें मिनिमम 2 लोग है क्या? हाँ है। फिर मैं पूछूंगा एग्रीमेंट है क्या? वो बोलेगा हमने राइटिंग में एग्रीमेंट नहीं लिखा। मैं बोलूंगा ठीक है, आपने ओरल किया था क्या? वो बोलता मेरा ओरल भी एग्रीमेंट नहीं है। मैं बोलता हूँ तो मैं फिर सब चीजें एक कलेक्टिव एविडेंस ले लूंगा कि देयर डीलिंग्स, वो कैसे एक दूसरे के साथ, क्या रिलेशन है उनका, कैसे डील कर रहे हैं। अगर मुझे उनके एक्शन से लग रहा है कि यस दे हैव एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट्स फ्रॉम ए बिजनेस, अगर मुझे ऐसे लगता है, राइट, आई हैव टू टेक कलेक्टिव। मैं एक एविडेंस से नहीं चलूंगा, मैं कलेक्टिव एविडेंस ले लूंगा। तब मैं आई विल गो फॉर द रियल रिलेशन। मैं उनका रियल रिलेशन ढूंढूंगा, जो हमें दिख नहीं रहा है मैं वो ढूंढूंगा, राइट। एंड फिर मैं डिसाइड करूंगा whether there is agreement or not. and अगर एग्रीमेंट, देखो एग्रीमेंट है तो सबसे अच्छा है, इसलिए तो कभी भी बिजनेस करोगे तो एग्रीमेंट होना चाहिए और राइटिंग में होना चाहिए। अगर वो रजिस्टर करते तो इज ऑलवेज गुड। एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप होगी ही नहीं। बट सर एग्रीमेंट कैन बी इन रिटर्न फॉर्म, एक्सप्रेस फॉर्म और इट कैन बी इम्प्लाइड फॉर्म। तो हमें इम्प्लाइड है तो हमें वो देखना पड़ेगा एक्चुअल में इम्प्लाइड है या नहीं है, ठीक है। Okay, sir, got it. Without agreement, a association cannot be partnership, and whether to register it not is a optional in